Hello friends, today we will discuss about the graphical representation of simple harmonic motion. In this graphical representation of simple harmonic motion, we have to take the two conditions. If the particle is performing simple harmonic motion, then if it starts its motion from the mean position, or second condition देंगे अपन, if the particle starts its motion from the extreme position. अब जब पार्टिकल अपनी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका वेरिएशन किस तरह से होता है, दैट वी हैव टू शो हियर ग्राफिकली, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. So we take here the first condition when the particle starts motion from the mean position. You know already this central position is called as the mean position. This is the right extreme position and this is the left extreme position. अगर वो mean position से positive extreme position की तरफ जा रहा है या negative extreme position की तरफ जा रहा है तो उस समय उसका displacement, velocity और acceleration किस तरह से vary होगा वो यहाँ पर निकालना है. So we know already when the particle starts its motion, its displacement at any instant t or at any time t is given by x equal to a sin of omega t plus phi. Now when that particle starts motion from the mean position, we know already phi equal to how much? 0. Initial phase calculus के अपन 0. So this equation becomes x equal to a sin of omega t. This is the equation for the displacement of the particle when the particle starts its motion from the mean position. Now velocity निकालना है तो velocity equal to क्या बोलते हैं अपन, rate of change of displacement with respect to time, that is dx by dt. अब इसी की डेरिवेटिव लिए थे अपन इससे पहले भी. a is the amplitude जो कैसा है, constant. It is the maximum displacement from the mean position. Derivative of sin of omega t cos of omega t, फिर से derivative of omega t किसका आएगा, ओमेगा. इस velocity v equal to क्या हो गया, a omega cos of omega t. This is the equation for velocity when the particle starts its motion from which position, mean position. Then acceleration equal to rate of change of velocity with respect to time. इसे जो velocity इसकी फिर से डेरिवेटिव लेंगे अपन, इसे डेरिवेटिव ऑफ a ओमेगा cos of omega t, इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा a ओमेगा फिर से कैसा है, कांस्टेंट. cos of omega t की डेरिवेटिव क्या होगी, माइनस sin of omega t into again derivative of omega t, that is omega. So it becomes what, minus a omega square sin of omega t. This is the equation for acceleration. ठीक है. इस पार्टिकल अगर अपनी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू a sin of omega t. अगर वो उसके वेलोसिटी का इक्वेशन होगा v इक्वल टू a ओमेगा cos of omega t, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin of omega t. अब ये तीनों इक्वेशन अगर देखते हो तुम तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों का जो वेरिएशन है दैट विल बी डिपेंड्स ऑन दैट ओमेगा टी. तीनों इक्वेशन में देखो यहाँ पर अपने को ओमेगा टी दिख रहा है. जैसा ओमेगा टी की वैल्यू 0 लेते हैं तो sin 0 क्या होता है, 0. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. यहाँ पर अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 लेते तो ओमेगा टी 0 इज cos of 0 plus 1, you will get here what, plus a ओमेगा. और यहाँ पर sin 0 की वैल्यू आएगा फिर से 0. पाई बाय 2 लेकर देखो, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 पुट अप करते हैं तो sin पाई बाय 2 कितना होता है, प्लस 1 into a, that is प्लस a. यहाँ पुट अप करेंगे तो cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0. v क्या हो गया, 0. यहाँ पाई बाय 2 पुट अप करोगे तो sin पाई बाय 2 प्लस 1, but here is the minus sign, you will get what, minus a ओमेगा स्क्वायर. इस क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर ओमेगा टी जिसको अपन ने बोले थे फेज, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उस ओमेगा टी के वैल्यू के साथ में क्या हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है. सिमिलरली अभी जो
ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 भी ले सकते हैं, अगर टाइम वेरिएबल के फॉर्म में लेना है तो टाइम के फॉर्म में अगर वेरिएशन लेना है तो 0 t by 4 t by 2 then thrice t by 4 then t and then 5 t by 4. ठीक है, यानी क्या हो गया यहाँ पर टाइम वेरिएशन इस यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है अपने को, ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मींस 2 पाई बाय t इनटू t। देखो यहाँ पे अगर आप 2 पाई बाय t स्मॉल t की वैल्यू 0 पुट अप करो करके देखो, यू विल गेट 2 पाई इनटू t इनटू 0, क्या हो गया 0। अगर ये t बाय 4 पुट अप करो तो क्या आएगा 2 पाई बाय t इनटू t बाय 4, दिस t गेट कैंसल्ड पाई बाय 2 आ रहा है। इस तरह से इस ओमेगा टी की वैल्यू को फेज के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर इसे आप देखो ओमेगा टी में टी है उसकी वैल्यू का के फॉर्म में लेना आपको टाइम पीरियड के फॉर्म में। दोनों लिख देता हूं यहां पर, ओमेगा टी की वैल्यू 0 पाई बाय 2 देन पाई देन 3 पाई बाय 2 देन 2 पाई एंड दिस विल बी 5 पाई बाय 2, sorry 3 पाई बाय 2। See here, वैल्यूज कैसे लिखे देखो, अब तुमको मालूम है कि जब पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है तब टोटल फेज कितनी होती है 2 पाई, और एक ऑसिलेशन को लगना टाइम इज कितना टाइम पीरियड t, तो 2 पाई इक्वल टू t, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया t by 2। तो जैसा देखो यहाँ पर ओमेगा t की वैल्यू 0 दिया मैंने, अगर पाई इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू t है तो पाई इक्वल टू कितना है t by 2। देखो पाई के जगह पे यहाँ पे t by 2 आया किया है, पाई बाय 2 निकालना भी जरूर 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 2 इक्वल टू कितना होगा t by 4 होगा, t by 4 होगा नहीं हो रहा है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है। सिर्फ यहाँ पर अगर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है तो t की वैल्यू इस तरह से लेना है, और विद फेज बोला है तो ओमेगा t की वैल्यू ये लेना है। अब देखो पहले वाली निकाल दो पर डिस्प्लेसमेंट के कैसा वेरिएशन होता है, जैसा देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t। सपोज ओमेगा t की वैल्यू मैंने 0 पुट अप किया, ये क्या हो जाएगा sin 0 हो जाएगा, sin 0 कितना होता है 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 होगी। सपोज अगर ये t की जगह पे 0 पुट अप करता तो ओमेगा इनटू 0 0, फिर से sin 0 हो रहा है यहाँ पर, तो पहली वैल्यू क्या मिलेगी x की अपने को 0। अब ये पाई बाय 2 पुट अप करो, ओमेगा t की जगह पे पाई बाय 2 पुट अप किया अपन ने, तो sin पाई बाय 2 कितना होता है +1 इनटू a, दैट इज द प्लस a और नॉट। सपोज अगर t बाय 4 पुट अप करते तो देखो क्या होगा, क्या था अपना इक्वेशन x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t। अब इसको जब पहले तुमको बताया मैंने, ओमेगा मींस क्या होता है 2 पाई बाय t इनटू स्मॉल t, और स्मॉल t की वैल्यू t by 2 पुट अप करके दे, कितना पुट अप करना है t by 2, ठीक है, या t by 4 पुट अप करो, क्या हो जाएगा a sin 2 पाई बाय t इनटू t की वैल्यू कितनी t by 4, so this t get cancelled to the 4, कितना बचा यहाँ पे पाई बाय 2 बचा, कहीं बचा, फिर बराबर sin पाई बाय 2 हमारी अपनी यहाँ पर, तो sin पाई बाय 2 कितना होता है +1, इसके सेम प्लस ये आया कि नहीं आया, then put the value of omega t as pi, pi पुट अप करोगे तो क्या होगा, pi पुट अप करेंगे तो sin ऑफ pi, sin ऑफ 0 0, तो sin pi भी क्या होगा 0, फिर से x की वैल्यू क्या होगी 0। 3 पाई बाय 2 पुट अप करो मींस pi के बाद में फिर से पेज कितने से चेंज हुई, पाई बाय 2 के बाद कितने से चेंज हुई pi से, और pi से पेज चेंज होने वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव से कहां जाती है नेगेटिव में, तो 3 पाई बाय 2 में sin 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है -1 इनटू a, क्या आएगा यहाँ पर -a, फिर से क्या आएगा 2 पाई के लिए 0, फिर से क्या आएगा यहाँ पर +a। देखो इंटीग्रेशन किस तरह से, पहले क्या आया डायगोनल
जीरो, फिर क्या है प्लस ए, फिर क्या है जीरो, फिर क्या रिपीट हुआ माइनस ए, माइनस ए के बाद में क्या हुआ जीरो, जीरो के बाद में क्या आ गया प्लस ए, इसके बाद में क्या आएगा जीरो, जीरो के बाद में क्या आएगा फिर से माइनस ए। उसी तरह से वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, जैसे यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करके अपन ने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाले, उसी तरह से वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। पहली वैल्यू ओमेगा टी की जीरो, इक्वेशन क्या है अपना v इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t, ओमेगा t इक्वल टू 0 cos 0 प्लस 1 इनटू a ओमेगा, इसका आ गया प्लस a ओमेगा। दूसरी वाली पुट अप करेंगे पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 इज cos 90, cos 90 कितना 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी 0। देन cos पाई मींस कितना होता है -1 इनटू a ओमेगा दैट इज माइनस a ओमेगा, फिर से क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा प्लस के ओमेगा, फिर क्या होगा उससे 0। अब तीसरी वाली निकालना है अपने को एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा ओमेगा t इक्वल टू 0 sin 0 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। फिर पाई बाय 2 पुट करो sin पाई बाय 2 प्लस 1 इनटू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, इसका आ गया यहाँ पर माइनस a ओमेगा स्क्वायर। फिर से sin पाई 0 sin 3 पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके आ जाएगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, फिर से 0, फिर से क्या आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखो प्लस a ओमेगा, फिर 0, फिर माइनस a ओमेगा, फिर 0, फिर से प्लस a ओमेगा, फिर से 0, रिपीटेशन जो ऐसा आ रहा है 0 माइनस a ओमेगा स्क्वायर 0, फिर क्या आएगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या आएगा 0, फिर से क्या आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। इसके सामने की फेज कर लेते हैं अपन, क्या मिलेगा अपने को 0, उसके बाद क्या मिलेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू निकाले अपन ने डिफरेंट फेजेस के लिए, डिफरेंट टाइम के लिए, उस पर से इस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। देखो यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट ग्राफ फॉर सपोज डिस्प्लेसमेंट, इसके निकाल रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए पहला ग्राफ निकालना। तो जिस समय फेज या टाइम t इक्वल टू 0 है तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 0 है। इस पहला पॉइंट कहां पे है यहां पर। देन यहां पर अगर देखते हो तुम तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो प्लस है या फिर माइनस है। ऊपर में क्या आएगा प्लस a, नीचे में क्या आएगा माइनस a। ओके, अब t की पहली वैल्यू अपन ने t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, पहला पॉइंट यहां पर आ गया। अब t की दूसरी वैल्यू t by 4, तो x इक्वल टू कितना प्लस है, ये हो गया t by 4 और x इक्वल टू कितना आया प्लस है, इस यहां पर पॉइंट आएगा। t by 2 की वैल्यू कितनी है 0, पॉइंट कहां पर आएगा यहां पर आएगा, कितना आएगा 3 पाई बाय 2 के लिए साइज t by 4 के लिए कितना है माइनस है, पॉइंट कहां पर आएगा यहां पर आएगा, देखो माइनस से आ रहा है। फिर t के लिए कितना है 0, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू होती है उसके बाद की 5t by 4, इससे भी कितना है प्लस है, इस पॉइंट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा इस तरह से। जॉइन दीस पॉइंट्स लाइक दिस। This is the curve which will be obtained for that displacement. इसलिए करोगे ये displacement में this is the graphical representation of that displacement of the particle when the particle starts its motion from the position mean position. अब उसी तरह से वेलोसिटी का कर्व निकालो। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी यहाँ पे प्लस a ओमेगा और नेगेटिव कितनी माइनस a ओमेगा। इस ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस a ओमेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा 0। वेलोसिटी इधर वेरिएशन किसके साथ में रहेगा, टाइम के साथ में। देखो टाइम t इक्वल टू 0, वेलोसिटी v इक्वल टू कितना प्लस a ओमेगा। इस पहला पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, कितना आएगा t by 4 के लिए कितना है 0, यहां पर आएगा। t by 2 के लिए कितना है माइनस a ओमेगा, यहां पर आ जाएगा। 3t by 4 के लिए कितना है 0, आ जाएगा पर फिर से 0 बराबर है। देन t के लिए कितना है प्लस a ओमेगा, ये t और प्लस a होगा ऊपर की तरफ, तो यहां पर पॉइंट आएगा 5t by 4 के लिए कितना है 0। ज्वाइन कर दो सभी पॉइंट्स को। This is the graphical representation of the velocity of the particle performing simple harmonic motion when it starts its motion from which position, mean position. अब तीसरा एक्सेलरेशन देखो। एक्सेलरेशन के लिए जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पर 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है
सी, नेगेटिव में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इधर कितना आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, टी बाय 4 पे तो कितना माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर पॉइंट आएगा टी बाय 2 पे कितना 0 आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर आएगा। जब t इक्वल टू 3t बाय 4 है तो कितना है टाइम t इक्वल टू 3t बाय 4, लेकिन एक्सप्रेशन कितना है उसके लिए प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर कितना ऊपर में इस यहाँ पर आएगा पॉइंट, फिर t के लिए कितना है 0 इस यहाँ पर आएगा पॉइंट, फिर 5t बाय 4 पे कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस लास्ट पॉइंट आ गया। ज्वाइन कर दो सबको, मिल रहा है यहाँ पर अपने को कर्व मिल रहा है कि मिल रहा है। So that is the curve for the graphical representation of the acceleration of the particle performing simple harmonic motion when the start its motion from the mean position mean position। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है कैसे। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, जैसा अपन 0 से स्टार्ट हुए इस t तक के गए, ओके, ये t तक के जाने के बाद में क्या होगा, इस t के बाद में फिर से सेम कर्व और से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो 0 से अपन स्टार्ट किए थे जहाँ तक गए t तक के गए, ये t के बाद में देखो फिर से सेम जैसा यहाँ स्टार्ट हुआ था वैसा यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है कि हो रहा है। यहाँ पर भी देखो 0 से आप कहाँ तक गए t तक के ऐसा कर्व फॉर्म हुआ था, उसके बाद फिर से नीचे से कर्व चालू हो रहा है कि हो रहा है, ऐसा बढ़ेगा कि बढ़ेगा। इस क्या दिख रहा है यहाँ पर, these curves for displacement, velocity and acceleration will be get, or the values of the displacement, velocity and acceleration are periodic, or they will be get repeated after the time period t। टाइम पीरियड t के बाद में क्या हो रही है वैल्यू क्या हो, जैसे के वैसे कर्व फिर से रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे, इसलिए क्या बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पीरियोडिक इन टाइम। दूसरा कंक्लूजन देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर कि जैसा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है a sin of ओमेगा t, एक्सेलरेशन की इक्वेशन में क्या है माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin of ओमेगा t, इस यहां पर भी sin of ओमेगा t है, यहां पर भी sin of ओमेगा t है कि नहीं है। तो कर्व्स फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर द साइन कर्व, उनकी टर्म उनके साथ में साइन है, इसलिए क्या बोलूं उनका फंक्शन है साइन, इसलिए क्या बोलने डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दोनों का जो कर्व है वो कौन सा कर्व है, साइन कर्व है, और वेलोसिटी का कर्व कौन सा है, उनकी टर्म यहां पे cos है, इसका हो जाएगा डी का कोसाइन कर्व, कौन सा कर्व हो गया कोसाइन कर्व। इस क्या बोलोगे द कर्व्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर साइन कर्व एंड द कर्व फॉर वेलोसिटी इज दिस कर्व कोसाइन कर्व। देन here displacement and velocity, when the displacement is minimum velocity is maximum, and when the displacement is maximum velocity is minimum। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज इस कर्व को मैंने पाई बाय 2 से या t बाय 4 से सामने शिफ्ट किया, या इस कर्व को t बाय 4 से इधर आगे शिफ्ट किया, दोनों कर्व सेम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और t बाय 4 की फेज कितनी होती है पाई बाय 2, देखो यहाँ पर t by 4 के फेज कितनी पाई बाय 2, इसमें क्या बोलोगे in between the displacement and velocity there is the phase difference of pi by 2, in between the displacement and velocity there is the phase difference of how much pi by 2, means यहाँ पर pi by 2 के फेज की पहली क्या मिलती है velocity maximum मिलती है, इसलिए क्या बोलोगे phase difference between the displacement and velocity is how much pi by 2। उसी तरह से नीचे गए अपन तो दोनों में भी फिर से फेज डिफरेंस देखो पाई बाय 2 दिख रहा है, या दूसरी तरह से सोचे तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या के फॉर्म में cos के फॉर्म में, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या के फॉर्म में sin के फॉर्म में, और ऑलरेडी वी नो sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 अगर इसकी वैल्यू क्या मिलती है अपने को cos ओमेगा t मिलती है, कि sin ऑफ ओमेगा t में पाई बाय 2 ऐड कर दिया अपन ने, फेज में ओमेगा t में पाई बाय 2 ऐड किए तो cos में कन्वर्ट हो रहा है कि हो रहा है, दोनों में का फर्क कितने का है, आपको फिर से पाई बाय 2 का फेज दिखाई दिख रहा है। जैसा इससे पहले करने के वैसा सोचे तो इस कर्व को थोड़ा इस कर्व को अगर अपन ने आगे लेके आ गए t बाय 4 से इस पाई बाय 2 से सामने लाए, दोनों कर्व सेम हो जाएंगे कि नहीं, जैसे ही उठा के आगे ला लो दोनों सेम होंगे नहीं होंगे, इन दोनों के बीच में फिर से डिफरेंस कितने का आ रहा है पाई बाय 2 का आ रहा है, इसलिए क्या बोलोगे फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑफ हाउ मच पाई बाय 2, कितने का फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस। देन इन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है एक्सेलरेशन
एक्सप्रेशन क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू कितने फेज के बाद रिपीट होती है, आफ्टर द पाई। इसलिए क्या बोलोगे, इन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन देयर इज द फेज डिफरेंस ऑफ हाउ मच, पाई रेडियन। कितने का फेज डिफरेंस है, पाई रेडियन का फेज डिफरेंस है। फिर से इसका अर्थ और एक बात को भी देखो, अपन ने डेफिनेशन में बोले थे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या होगा तुम्हारे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा बोले थे अपन ने। इसमें माइनस साइन क्या शो करता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक एक से अपोजिट है, और ये एक्सेलरेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। इस नेगेटिव साइन क्या शो करता है बोले थे अपन ने, इट शोज दैट the direction of acceleration and displacement are opposite to each other। देखो यहाँ पर बात क्लोरीन की होगी, जब एक्सेलरेशन मिनिमम है तब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। देखो बोला यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है कि नहीं है। जब t/4 में जाएगा पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी देखो, एक की वैल्यू क्या मिल रही है प्लस है, इसकी वैल्यू क्या है माइनस है ओमेगा स्क्वायर। फिर दोनों में का फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाई का फेज डिफरेंस हुआ, और दोनों कर्व कैसे एक एक से अपोजिट है या नहीं है, डायरेक्शन कैसे दोनों की एक एक से अपोजिट है। ठीक है, सो दिस आर द कंक्लूजन व्हिच विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट ग्राफ, और यू हैव टू राइट दैट कंक्लूजन बाय ऑब्जर्विंग दैट ग्राफ। अब इसी में सेकंड कंडीशन दी है तुमको फिर से, जो तुमको खुद बनाना है, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, वो एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मैं ये भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तुम्हारा रंग आ जाएगा, इस तरह से निकालना। अब तुमको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो था आपने इसके पहले का, वो ये x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई। जब पार्टिकल अपनी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो इनिशियल फेज पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई/2। ये पाई की वैल्यू आप पुट करो, यू विल गेट x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई/2। इसे जो फाई है इसके जगह पे पाई/2। और इस थोड़ी देर पहले बताया तुमको मैंने sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई/2 इसके होता है cos ओमेगा t। दिस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos ऑफ ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद में हमने दो कंडीशंस दिए थे, पार्टिकल अगर अपनी मोशन इन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लेने बोले थे अपन ने, x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t, और एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो क्या बोले थे, x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। आगे बराबर x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। अब जैसे इसके पहले वेलोसिटी निकालते वैसे वेलोसिटी निकालो। तो क्या किया अपन ने, इसके पहले इसकी डेरिवेटिव लिए थे, इसकी डेरिवेटिव लो क्या होगी, a डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ओमेगा t माइनस sin ऑफ ओमेगा t इनटू ओमेगा, इसका हो गया माइनस a ओमेगा sin ऑफ ओमेगा t। ये किसका इक्वेशन बन गया, वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या किया था अपन, इसके पहले वेलोसिटी डेरिवेटिव लेते, वैसे इसकी डेरिवेटिव लो, ये माइनस a ओमेगा कांस्टेंट जैसे को वैसे रख दिया मैंने। sin ऑफ ओमेगा t की डेरिवेटिव क्या होती है, cos ऑफ ओमेगा t इनटू ओमेगा, क्या मिल रहा है यहां पर माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा t। ये किसका इक्वेशन हो गया आपका, एक्सेलरेशन। जैसे यहां पर अपन ने वैल्यू निकाली तो वैसे यहां पर भी वैल्यू निकालो, जो वैल्यू जिसके पहले निकाले अपन ने वैसे ही वैल्यू यहां पर निकालो। देखो क्या आएगा, पुट अप करो पहले वैल्यू t की, या ओमेगा t की वैल्यू पहले वैल्यू 0 पुट अप करो यहां पर, cos 0 प्लस 1 इनटू a, क्या मिलेगा यहां पर अपने को, प्लस a। फिर क्या है, पाई/2, cos पाई/2 इज cos 90, 0 इनटू ये क्या हो गया, 0। फिर पाई, cos पाई कितना, -1 इनटू ये क्या आएगा, -1। अब क्या आएगा, कितना है, 3 पाई/2, cos 3 पाई/2 फिर से क्या होता है, 0। फिर आ गया 0। अब क्या आएगा, ये बताया था मैंने, a प्लस a 0 माइनस a 0, क्या आना चाहिए फिर प्लस a, फिर क्या आना चाहिए यहां पर 0 आना चाहिए। वैल्यू पुट करके देखो बराबर पता ही नहीं मिलता। वेलोसिटी निकालो उसी तरह से, ये इक्वेशन अपना वेलोसिटी का, ओमेगा t की वैल्यू 0 sin 0 पहली वैल्यू क्या आ गई 0। फिर पाई/2 पुट अप करो, sin पाई/2 प्लस 1 इनटू माइनस a ओमेगा, क्या मिलेगा, माइनस a ओमेगा। अब क्या आएगा इसके बाद
ए ओमेगा, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा माइनस ए ओमेगा। देन एक्सेलरेशन निकालो उसी तरह से, ओमेगा टी की वैल्यू को पुट अप करो, cos 0 1 इनटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। आगे समझ में आ गया क्या करना पड़ेगा, जैसे रिपीट वैसे रिपीट करो, क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर क्या आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या आएगा 0। ये वैल्यूज पुट अप करके देखो यहां पर बराबर वैल्यू मिलती है। अब जैसे यहां पे अपन ने cos निकाले वैसे ही है, cos फिर से प्लॉट करना है, इसी को मिटा लेता हूं, एक बना देता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बोलो पहले वैल्यू क्या आएगी, क्या पहली वैल्यू यहां पर डिस्प्लेसमेंट x, टाइम कितना 0, कितनी वैल्यू है प्लस 1, कहां पे आएगा पहला पॉइंट, ये ऊपर में आएगा π/2 या t/4, t/4 के लिए कितना 0, यहां पे आएगा पॉइंट, फिर कितना t/2 माइनस से कहां आएंगे, ये t/2 का अपना कहां पे आएंगे नीचे में, फिर t/4 कितना 0, फिर कितना t दैट इज प्लस a, फिर नीचे आएंगे इधर, यहां पर 0 आएगा, इसको ज्वाइन करो। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी की पहली वैल्यू t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, ये हो गया पहला पॉइंट। देन t/4 के लिए कितना माइनस ए ओमेगा, यहां पर आएगा, t/2 के लिए कितना 0, यहां पर आ गया, फिर t/4 कितना प्लस ए ओमेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, बराबर है, फिर t के लिए 0, यहां पर आना पड़ेगा, फिर 5t/4 कितना माइनस ए ओमेगा, यहां पर जाना पड़ेगा, डॉट्स को ज्वाइन कर लो, देखो ज्वाइन किया मैंने, आ गया, इस तरह से पड़ेगा, फिर निकालना है इसका अपने को एक्सेलरेशन, पहली वैल्यू कितनी 0 के लिए t इक्वल टू 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर मींस यहां पे आ गया, t/4 0 यहां पे आ गया, फिर कितना t/4 के बाद में t/2 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां पे आ गया, फिर 3t/4 कितना 0 यहां पे आ जाएगा, फिर t के लिए जो कितना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां पे आएगा, फिर 5/0, इसको ज्वाइन करो, बन गया। दिस इज द कर्व फॉर एक्सेलरेशन, दिस आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द simple harmonic motion of the particle when it starts its motion from the which position, extreme position। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे शुरुआत करना x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t से, कहते हैं यहां पर ट्रांजिशन शुरुआत करना x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। कैरेक्टरिस्टिक फिर से सेम है, ओनली एक बात यहां पे चेंज होगी अपनी, जब जैसा बोले थे अपन ने डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में भी साइन था और एक्सेलरेशन के इक्वेशन में भी साइन था, यहां पर क्या है cos है, cos है, और वेलोसिटी के इक्वेशन में क्या है साइन है। द कर्व्स फॉर displacement and acceleration are cosine curve and the curve for velocity is sine curve। जैसा after the time interval capital T, each curve will be get repeated with this displacement, velocity and acceleration are periodic in time, okay। बाकी सब सेम दिख रहा है, तो देखो जिस समय दोनों में का फेज डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे π/2 का ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस π/2 का, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस कितने π/2 का, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज कितने का पाई का। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पहले कर्व के वही कैरेक्टरिस्टिक यहां पे इसमें फिर से सिर्फ यहां पे एक ही चेंज होगा कि कर्व्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर कोसाइन कर्व एंड द कर्व फॉर द वेलोसिटी इज साइन कर्व। ये जो ग्राफ है वो बनाना है अपने टॉपिक पे, इस तरह से वैल्यूज निकालने देखना है, खुद बनाना है, ओके। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।